channel Commerce by Anup sir. Continuing with our earlier video, we are going to discuss the job evaluation in this video. Job evaluation means in last two videos we have discussed about job analysis, job design, and third topic is job evaluation. All these three topics are very much related to each other, and all these topics are still confusing to the students. So first, job analysis is collecting the information about the job. Job design is collecting this information into a single unit, and job evaluation is analyzing the value of the job or analyzing the value of a job with comparison to the others. Means evaluate how important is the job for the organization and how we will describe the type of job, how we will hierarchy the jobs in the organization, how we grade the jobs in the organization. That is job analysis. Analysis and assessing the various jobs. जितने भी जॉब्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करना और उनको एसेस करना. And this is done on the basis of content and ranked accordingly. Means what type of content jobs. Content includes job designs. Means what task you have to perform and what skill you need to perform that job. On the basis of content we will decide कि how much important is the job for the organization. The much important jobs are placed on the higher grade, the less important jobs placed in the lower grade. So it helps in deciding the content and rank them accordingly. This gives you the value of the job. Means what is the value of the job to the organization, how important is your job to the organization, and how much the organization will be ready to pay for the particular job. Normally हम ये बोलते हैं कि it help in assessing the monetary value of job. It help in assessing the monetary value of job कि आपकी जॉब की monetary value कितनी है, कितने पैसे या कितने पैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन उस जॉब के लिए कितनी सैलरी दे सकता है. तो what is the significance of job evaluation? Job evaluation is very significant. It help in deciding that what type of job are more important to the organization, what type of job are less important to the organization, and how we hierarchy the jobs. Means how we set the jobs one after the others, which is on the higher side, which in the lower side, as well as it help in knowing the value of the job, wage and the salary determinations. Means कितनी सैलरी कितनी वेज हमें अपने उस जॉब के लिए किसी पर्सन को देनी है. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ जॉब रैंकिंग. मीन्स जितनी रैंक जॉब की हाई होगी उतनी सैलरी या उतनी ग्रेडिंग हम उसके लिए देते हैं. तो क्लियर हुआ. जॉब एवैल्यूएशन बहुत छोटा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जॉब एवैल्यूएशन इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द जॉब. क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जॉब एवैल्यूएशन. तो फर्स्ट this is the process of job evaluation. First it includes objectives of job evaluation. Second it includes job analysis. Then job evaluation program, salary and wage determination, and employee classification. कि how employees are classified into the various job. First we have to know the objectives of job evaluations. Means जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम जॉब एवैल्यूएशन जो है कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या क्या होना. ऑब्जेक्टिव क्या इंक्लूड करता है, विच जॉब्स आर टू बी इवैल्यूएटेड, हु शुड इवैल्यूएट द जॉब, व्हाट ट्रेनिंग द इवैल्यूएटर शुड गिवन टू इवैल्यूएटिंग द जॉब, हाउ मच टाइम इज इन्वॉल्वड इन द जॉब, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन, एंड व्हाट मेथड्स विल बी यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन. तो फर्स्ट वी नो द ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स हमने कौन सी जॉब इवैल्यूएट करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन करने वाला है इवैल्यूएशन को. इसके अलावा जो इवैल्यूएटर्स हैं वो हम बाहर से लेके आएंगे या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग ही उन जॉब्स को इवैल्यूएट करेंगे. इसके साथ साथ हमें उनको कौन सी ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से जो करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू क्लियर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन. ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने के बाद जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस हम पहले कर चुके हैं. इंफॉर्मेशन जो है उस जॉब के बारे में इकट्ठी की जाती है. तो जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब
डिस्क्रिप्शन। इनसे आपको पता लगता है कि कौन सी जॉब मुश्किल है, कौन सी जॉब आसान है, किस जॉब को करने के लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत है। उनको कंबाइन करते हैं हम जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम के लिए कि कौन से मेथड से हम जॉब इवैल्यूएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस। देन on the basis of job evaluation program, on the basis of this we will decide the salary and the wage of the employees. And next is employee classification, and on the basis of salary the employees are classified into various categories. जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं कई बार और जॉब आई होती तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, दिस इज एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन। दिस इज जॉब इवैल्यूएशन मीन्स जैसे ग्रेड 4 मीन्स ग्रेड 4 की जॉब की वैल्यू इतनी है, उसके बाद ग्रेड 3 की जॉब की वैल्यू इतनी है। तो एक्चुअल में वो जॉब इवैल्यूएशन ये होता है कि उस जॉब के लिए हमें कितना पैसा देना चाहिए या कितना पैसा देने को हम लोग जो है तैयार होते हैं। क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन कि जॉब इवैल्यूएशन जो है किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से हमें उसको करना चाहिए। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन मीन्स कौन से मेथड्स हैं, कैसे हम जॉब इवैल्यूएशन जो है कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। फर्स्ट इज नॉन एनालिटिकल मेथड, सेकंड इज एनालिटिकल मेथड। फर्स्ट इज नॉन एनालिटिकल, एज द नेम इंडिकेट there is no comparison of the content, means there is no use of the detailed job factors, means कोई उसमें एनालिटिकल या एनालिसिस जॉब का नहीं होता है, ना ही हम जॉब रिलेटेड फैक्टर्स को जो है कंपेयर करते हैं, ना ही हम जॉब रिलेटेड फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नॉन एनालिटिकल जॉब। These are the earlier method which are used in the earlier time. Non-analytical methods means they make no use of the detailed job factors. Job detail factors का कोई हम detail use इसके अंदर नहीं करते। 2 मेथड आते हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज रैंकिंग मेथड, सेकंड इज जॉब ग्रेडिंग मेथड। This is the पहला है जॉब रैंकिंग मेथड। This is the simplest method and most inexpensive and most expedient method of the evaluation. मीन्स सबसे ज्यादा हम इसको मेथड को यूज करते हैं, सबसे आसान तरीके से यूज किया जाता है। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जॉब के टाइटल के बेस के ऊपर और उसके कंटेंट के बेस के ऊपर जॉब को रैंक कर देते हैं। मीन्स जैसे कोई मैनेजर की टाइटल है तो वो ग्रेड 1, ठीक है। सुपरवाइजर की टाइटल है वो ग्रेड 2, ठीक है। उससे नीचे किसी वर्कमैन या किसी फोर्स वर्कमैन की टाइटल है तो उसको ग्रेड 3, उससे पीछे पीएन आ गया तो दैट इज ग्रेड 4। मींस द सिंपली द जॉब इज रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, टाइटल के बेस के ऊपर। उसमें जॉब के अंदर वो टाइटल के अंदर क्या काम कर रहा है, कितने काम कर रहा है, कितने मुश्किल काम कर रहा है, उसके बारे में कोई जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड एंड इनएक्सपेंसिव मेथड। सिर्फ जॉब टाइटल के बेस के ऊपर हम उसको रैंक कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी हायरार्की जो है डिसाइड हो जाती है। नेक्स्ट इज जॉब ग्रेडिंग मेथड। जॉब ग्रेडिंग मेथड भी सिमिलर, बट इसमें थोड़ा सा अलग क्या होता है कि हम जॉब्स को ग्रेड देते हैं। इट मींस वहां पे जैसे कोई कंपैरिजन नहीं था रैंकिंग मेथड में, लेकिन जॉब ग्रेडिंग मेथड में जो है हम कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑफ ग्रेड्स आर डिसाइडेड कि हमें कितनी ग्रेड्स की जॉब ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। पहले हम नंबर ऑफ ग्रेड्स डिसाइड करते हैं, उसके बाद उन ग्रेड्स के साथ जॉब को मैच करते हैं। फैक्ट अबाउट द जॉब्स आर कलेक्टेड कि कितनी तरह की हमारे पास जॉब अवेलेबल है। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी जॉब किस ग्रेड को मैच कर रही है, दैट इज जॉब ग्रेडिंग मेथड। तो फर्स्ट इज ग्रेड आर डिसाइडेड, then jobs are identified and these are mixed कि which type of job is suitable for which type of grade. That's why that is known as non-analytical methods. Means we don't go deep in the job information या जॉब एनालिसिस। हम सिर्फ टाइटल के बेस पे, जॉब्स काम के बेस पे उनको ग्रेडिंग कर देते हैं। तो रैंकिंग मेथड में क्या करते हैं, सिंपली हम टाइटल के बेस के ऊपर उसको रैंक कर देते हैं। ग्रेडिंग मेथड में क्या करते हैं, हम पहले ग्रेड डिसाइड करते हैं,
फिर हम जॉब डिसाइड करते हैं और उसके बाद जॉब्स को ग्रेड के साथ मैच कर देते हैं कि कौन सी जॉब जो है किस ग्रेड के साथ मैच हो रही है, उसके साथ हम उसको मैच कर देते हैं। तो दैट इज जॉब ग्रेडिंग मेथड। उसके बाद एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड एज द नेम इंडिकेट कि हेयर वी try to find out the detail of the job content कि जॉब में बंदे को क्या क्या काम करना है। हम जॉब कंटेंट के बारे में जो है बात करते हैं कि जॉब कंटेंट के बारे में हम बात करते हैं कि उसके अंदर जो है उसको क्या क्या काम करना है। तो इसके अंदर दो मेथड आते हैं, पॉइंट रैंकिंग मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड्स। फर्स्ट इज पॉइंट रैंकिंग मेथड, सेकंड इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड्स। पॉइंट रैंकिंग मेथड्स में हम क्या करते हैं, एक जॉब को करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं या कौन कौन से उस जॉब के अंदर आपको काम करने हैं, उस जॉब के मेथड्स को जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको पॉइंट्स दे देते हैं। दैट जॉब मेथड्स आर आइडेंटिफाइड एंड पॉइंट्स आर गिवन टू दिस कंटेंट एंड ऑल, and on the basis of these points the job is graded accordingly। जिसको जितने ज्यादा पॉइंट मिले होते हैं उतना जो है उस जॉब को हायर ग्रेड मिलता होता है, उसके जिसको जितने कम पॉइंट होते हैं उतना जो है उस जॉब को कम ग्रेड मिला होता है। तो दिस इज मींस हैविंग फैक्टर्स, डिग्रीज एंड पॉइंट्स। हम फैक्टर्स डिवाइड करते हैं, उसके बाद उनकी डिग्री डिसाइड करते हैं और उनके पॉइंट्स डिसाइड करते हैं और उनको जो है पॉइंट्स अकॉर्डिंगली दे देते हैं। क्लियर? दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज पॉइंट रैंकिंग मेथड कि जॉब में जितने भी कंटेंट अवेलेबल हैं हर कंटेंट को एक पॉइंट दिया जाता है, उन पॉइंट्स को हम टोटल करते हैं और उसके बाद उसकी रैंक करते हैं। मींस पॉइंट्स आर रैंक्ड इन द जॉब। नेक्स्ट इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड। दिस इज द मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ द जॉब्स कि means various factors related to the various jobs are collected and they are compared with each other। they are compared with each other। हर जॉब हर फैक्टर पे कंपेयर की जाती है और जो जिस जॉब का स्कोर ज्यादा होता है सारे फैक्टर्स के अंदर, उस जॉब को जो है हम हाई स्कोर दे देते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली हम 5 फैक्टर्स मान के चलते हैं, 5 फैक्टर्स नॉर्मली जो बोला जाता है। वो 5 फैक्टर्स कौन से हैं? स्किल रिक्वायरमेंट, स्किल, मेंटल रिक्वायरमेंट। स्किल रिक्वायरमेंट एक जॉब को करने के लिए कितनी स्किल्स चाहिए, कौन सी मेंटल रिक्वायरमेंट चाहिए, फिजिकल एक्सर्शन, आपके फिजिकल एफर्ट्स उसके अंदर कितने लगने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जॉब में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कितनी अकाउंटेबिलिटी आपकी है, एंड लास्ट इज जॉब कंडीशंस, किन हालात में आप जॉब कर रहे हैं। तो हर जॉब इन 5 फैक्टर्स के ऊपर कंपेयर की जाती है। मींस इट मे बी पॉसिबल दैट वन जॉब इज हायर इन स्किल, दैट मे बी गेट द लेसर पॉइंट ऑन द जॉब कंडीशन, एंड द अदर जॉब दैट इज हायर ऑन द फिजिकल ग्राउंड may have the less score on the basis of mental requirement। तो हर जॉब को हम इनके बेस पे स्किल स्कोर दे देते हैं, 0, 2, 3, 4 जिस भी लेवल पे वो आती है। then we total these scores for the each job and rank them accordingly। that's why that is known as factor comparison। means हर जॉब के हम फैक्टर जो है कंपेयर करते हैं और उनको जो है पॉइंट्स करके करते हैं। this is the most widely used and most effective method of जॉब इवैल्यूएशन। क्लियर हुआ कि जॉब इवैल्यूएशन क्या है। जॉब इवैल्यूएशन में जो चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है सबसे पहले तो ये कि जॉब इवैल्यूएशन है क्या, और उसके बाद मेथड्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, पॉइंट रैंकिंग मेथड एंड जॉब ग्रेडिंग मेथड। ऑलमोस्ट ऑल मेथड्स आर सिमिलर बट द डिफरेंस इज ओनली इन द कंपैरिजन कि किस मेथड में हम क्या कंपेयर करते हैं। जैसे रैंकिंग मेथड में हम कुछ कंपेयर नहीं करते, सिर्फ टाइटल को रैंक कर रहे होते हैं। जॉब ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं, ग्रेड को कंपेयर कर रहे होते हैं, ग्रेड बना लेते हैं, उनको जॉब के साथ बांट देते हैं। पॉइंट रैंकिंग मेथड में भी हम एक जॉब के पॉइंट्स क्लियर कर रहे होते हैं पर दूसरों के साथ उसको कंपेयर नहीं कर रहे होते।
फैक्टर कंपैरिजन में सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है कि इसमें हर जॉब को पॉइंट भी दिया जा रहा है और उस जॉब को दूसरे जॉब के साथ कंपेयर भी किया जाता है। क्लियर? दिस इज जॉब एवल्यूशन। And if you have any queries related to this job evaluation, you can write in the comment box, and please like and share and subscribe our YouTube channel Commerce by Anup Sir. Thank you.